Hi everyone, welcome back for GST lecture again. In this module we are going to learn about defining GST at ledger level. Okay, so how till now we learn about defining GST at first of all company level, then defining GST at group level, then defining GST as an item level. In this topic we are going to learn about defining GST at ledger level. Now, tax consultant who maintain GST records for the organization which is small turnover usually enter the purchase and sales transaction without inventory details. यानी जहाँ पे consulting हो रहा है, services हो रहा है. Now, Joshi Electrical, the consumer of the Trick Corporation, enters GST related transaction without entering the inventory details. Objective: enabling GST ledger wise and GSTR 3B. 3B यानी it is related to services. Let's see how it is. ना जोशी इलेक्ट्रिकल्स बोल के हम लोगों ने क्या किया, एक कंपनी क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू कंपनी एज पर द कंपनी डिटेल्स बिलो. जोशी इलेक्ट्रिकल, शॉप नंबर 9, कुबेर शॉपिंग सेंटर नियर पंचबत्ती, महिम रोड, पालघर. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिएट न्यू कंपनी. सो गो फॉर द टैली. शट कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल F3. विल क्लोज दिस वन. Okay, I go for the create company. Joshi Electricals. Okay, so Joshi Electrical, shop number 9, Kuber Shopping Center, shop number 9, Kuber Shopping Center near Panchavatti, Mahim Road, Palghar. Yeah. Mahim Road, Palghar. Okay, so it's from the Maharashtra. So select state as a Maharashtra. Control A, accept. Okay, now go for the GST alter details and you have to put the GST detail as. So यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, GST details में जाते हैं. Yes, so he is a regular dealer. Okay, regular and monthly GST return with GSTN number 27 Joshi 1234 A1, 27 Joshi 1234 A1 ZI. ओके, सो मंथली रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं मंथली, और यहाँ पे बाकी चीज़ को हम लोग को कंट्रोल एक्सेप्ट करना है. सो यहाँ पे देखो, कंट्रोल एक्सेप्ट करने के बाद गेट ऑफ टेली क्रिएट लेजर ट्रिक कॉर्पोरेशन. क्या करना है, ट्रिक कॉर्पोरेशन बोल के लेजर क्रिएट करना है. सो आई विल गो फॉर द लेजर. सो दैट इज ट्रिक कॉर्पोरेशन. ओके, सो यहाँ पे देखो, ही इज द सन्ड्री क्रेडिटर. सो गिव इट एज अ सन्ड्री क्रेडिटर. एंटर. मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस. ट्रिक कॉर्पोरेशंस and provide the regular dealer. So यहाँ पे regular dealer and provide the GSTN number 27 trick 1234 27 trick 1234 A1 ZI. Okay, so 1234 A1 ZK दिया है. चलो, so ZK, और यहाँ पे उसको एक्सेप्ट करते हैं. कंट्रोल है एक्सेप्ट. नाउ यहाँ पे देखो, आचार्य एंटरप्राइजेस इज द सन्ड्री डेटर्स. Now यहाँ पे now create a ledger. Archana Enterprises Sundry Debtors. She is from the Gujarat. Yeah, the company is from the Gujarat, and the company is unregistered dealer. So we are take it as a Archana Enterprises Sundry Debtors. Maintain balance bill by bill S, Maharashtra, and he is a company's unregistered dealer. So we provide it as a, so company is from the Gujarat, so take it as a Gujarat unregistered. Control A, accept. So unregistered dealer. Now purchase account. under purchase account यहाँ पे देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, create ledger to record a purchase at the rate 18%. so हम लोग यहाँ पे देखो ledger wise हम लोग टैक्स रेट एप्लीकेबल कर रहा है. सो परचेस एट द रेट 18%, परचेस एट द रेट 12%, सेल्स एट द रेट 18% एंड सेल्स एट द रेट 12%. टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल और इंटीग्रेटेड टैक्स 12%. सो यहाँ पे टैक्सेबिलिटी एक्सेप्टेबल
इंटीग्रेटेड टैक्स, जीएसटी एप्लीकेबल है, सेटल टैक्सेबल 18%. सो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सप्लाई इज गुड्स, types of supply is goods, types of supply is goods, and types of supply is goods. So input CGST again, that is central tax, input SGST central tax, IGST and CGST, फिर SGST. so यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया है, इनपुट SGST, इनपुट CGST लेजर. so यहाँ पे देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है, लेजर वाइज टैक्सेबल लगा, और हम लोगों ने इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और IGST, CGST, SGST we have calculated according to that. So let's start how to create. So says I will create purchase ledger. So यहाँ पे जाता हूँ, we are taking purchase at the rate 18% under purchase account, yes. Okay, applicable GST applicable, yes. So यहाँ पे applicable करना आपको, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, एंटर टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, और यहाँ पे रेट डालना आपको इंटीग्रेटेड, दैट इज 18%. सो यहाँ पे देखो आपको क्या रखना है, ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स टैक्सेबल 18% आपको रखना है, और टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स देना है. सो देखो 18% रखता हूँ, एंटर टाइप्स ऑफ सप्लाई इज गुड्स, कंट्रोल एक्सेप्ट, देन आपका सेल्स एट द रेट 18% अंडर सेल्स अकाउंट. यहाँ पे सेल्स अकाउंट लेते हैं हम लोग, एंटर जीएसटी अल्टर डिटेल्स यस. ओके, तो यहाँ पे एस कर देना. यहाँ पे आपको क्या करना है, यस टैक्सेबल, और टैक्सेबल 18%, कंट्रोल एक्सेप्ट, टाइप्स ऑफ सप्लाईज गुड्स, कंट्रोल एक्सेप्ट, देन परचेस एट द रेट 12%, कितना है 12% से. सो हम लोग अगेन परचेस अकाउंट के अंडर डालते हैं टैक्सेबल यस, इट इज टैक्सेबल यस, टैक्सेबल एंड ऑलमोस्ट 12%, कंट्रोल एक्सेप्ट, कंट्रोल गुड्स लेना, कंट्रोल एक्सेप्ट, देन अगेन सेल्स एट द रेट 12%. ओके, सो यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा, वो इट विल गोज अंडर सेल्स अकाउंट. ओके, so settle to GST, or it is taxable, yes taxable, and give it as a 12%, so give it as a 12%, control A, accept, types of supplies goods, control A, accept. So we provide the goods. So यहाँ पे देखो 12%, sales 18%, sales 12% we create. Now input CGST, input SGST and IGST we have to create. Okay, so यहाँ पे input हम लोग खाली CGST और SGST ले रहे हैं, IGST नहीं ले रहे. सो हम लोग क्या करते हैं, सो यहाँ पे इनपुट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ओके, टाइप्स ऑफ ड्यूटी GST, और यहाँ पे आपका सेंट्रल है तो सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल एम एक्सेप्ट. यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो हम लोग लेते हैं इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी GST, और आपका स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स और कंट्रोल है एक्सेप्ट. सो इसके बाद लेना आपको IGST, CGST, SGST. सो यहाँ पे IGST अंडर आपका इंटीग्रेटेड टैक्स 0%, सेंट्रल टैक्स और GST. सो IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी GST, और इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल एक्सेप्ट, CGST, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल एक्सेप्ट, SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे मैंने स्टेट टैक्स, कंट्रोल एक्सेप्ट. से यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या डाला, IGST, CGST, SGST वी हैव क्रिएटेड. ना कस्टमाइजिंग वाउचर नंबर, सेल्स का हम लोग को ऑटोमेटिक वाउचर नंबर आना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑटोमेटिक नंबरिंग रखते हैं. सो दैट इज सर. हां, आता तुम्ही आता याच्या लेजर क्रिएट केले ना, आता याच्यामध्ये तुम्ही बघा जे पर्सेंटेज आहेत ना तिकडे तुम्ही टाकले नाहीयेत, बरोबर आहे. पण आता काय काय कंपन्या असतात ना ते नुसतं ट्रेडिंग इंटर पास करतात, ते इन्व्हेंटरी मेंटेन नाही करत. अकाउंट्स ओनली मध्ये लोक इंटर पास फक्त बुक रेकॉर्ड करतात. तिकडे आपण लेजर मध्ये पर्सेंटेज ते परचेस अकाउंट आणि सेल्स अकाउंट मध्ये टाकायचे ना, तेच सांगतो आपण आता.
परचेस अकाउंट आणि सेल्स अकाउंट जे क्रिएट केलंय ना तिथे टाकायचंय तुम्हाला, तेच सांगतोय सर तुम्हाला. हे पूर्ण कम्प्लीट झालं ना की मग तुमचा डाऊट विचारा, ते क्लिअर झालेलं असेल सर. सो वी कीप्ट एज ऑटो नंबरिंग दैट इज /21-22 कंट्रोल एक्सेप्ट कंट्रोल एक्सेप्ट. सो वी कीप द सेल्स के लिए ऑटो नंबरिंग सिस्टम रखा. नाउ ट्रिक ऑपरेशंस के लिए रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन सैंपल रिसीव द फॉलोइंग इनवॉइस फ्रॉम द ट्रिक ऑपरेशन. सो ट्रिक ऑपरेशन से मुझे फॉलोइंग इनवॉइस मिला. ओके सो कौन सा मिला? 27 ट्रिक 1 2 3 4 A1 ZK के अगेंस्ट ये वाला इनवॉइस मिला है. इनवॉइस में क्या लिखा है कि हम लोगों ने क्या क्या परचेस किया है. सीलिंग फॉन ऑफ हैवल्स, HSN सैक नंबर, GST रेट 18%, और ये सीलिंग फैन हैवल्स इसका LED 12% का ये, और टोटल मेरा इनवॉइस बिल यहाँ पे नीचे मिल जाएगा अगेंस्ट HSN एंड सैक कोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट, इसके लिए हम लोग को क्या क्रिएट करना पड़ेगा? पहला वी विल क्रिएट, यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे. स्टॉक आइटम में ये दोनों को 18% है और इसको 12% है. सो यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टेली सिलेक्ट वाउचर्स F9 परचेस कंट्रोल. अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं मेंटेन कर रहे हैं. ओके सो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे मेंशन किया है, देखो tax consultant who maintain GST record for the organization with small turnover usually enter the purchase and sales transaction without inventory details. यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट क्या कर रहा है, जीएसटी का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है. लेकिन जीएसटी का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहा है? ओनली कितना परचेस किया और कितना सेल्स किया, विदाउट मेंटेनिंग देयर इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस. क्योंकि उनको क्या करना है, खाली रिटर्न फाइल करना है गुड्स के अगेंस्ट यानी बिल के अगेंस्ट. सो इतना बिल का परचेस किया, इतना बिल्स का सेल किया. दे डोंट वांट टू मेंटेन द हाउ मच स्टॉक मेंटेन, हाउ मच स्टॉक गोस्ट, हाउ मच स्टॉक इन. सो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट हु मेंटेन जीएसटी रिकॉर्ड विद स्मॉल टर्न यूजुअली एंटर द परचेस एंड सेल्स ट्रांजेक्शंस विदाउट इन्वेंट्री डिटेल्स. सो जो ट्रिक कॉर्पोरेशन से मुझे जो इनवॉइस मिला उसका क्या करेंगे हम लोग, खाली ये वाला एंट्री करेंगे कि कितना टैक्सेबल अमाउंट था, उसके ऊपर कितना टैक्स आया और हाउ मच टैक्स वी हैव टू पे टू द कस्टमर. सो ये हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री पास करेंगे. सो यहाँ पे देखो गेटवे ऑफ टेली परचेस, आपको मोड चेंज करना है, कंट्रोल एच चेंज मोड एंड सिलेक्ट एज अकाउंटिंग इनवॉइस. क्या लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस. सो अकाउंटिंग क्यों ले रहा है, क्योंकि हम लोग को परचेस और डायरेक्ट लेना है विदाउट एंटरिंग एनी ट्रांजेक्शन एंट्री ऑफ. यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स लिए तो यहाँ पे स्टॉक आइटम नहीं आने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं स्केल. सो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ मैं. यहाँ पे परचेस के लिए हम लोग F9 परचेस देते हैं, कंट्रोल एच, और यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेना है. तो यहाँ पे देखो पर्टिकुलर्स आ रहा है, स्टॉक आइटम नहीं आ रहा है. सो यहाँ पे देखो सप्लायर इनवॉइस नंबर SL00005. So SL-00005/21-22 1 अप्रैल है, डेट 2 अप्रैल है. सो F2 डेट करता हूँ मैं 2 अप्रैल, मैक्स फेस देना 2 अप्रैल. ओके पार्टी अकाउंट नेम किसे है, ट्रिक कॉर्पोरेशन से मुझे इनवॉइस नंबर मिला है. ओके कंट्रोल एक्सेप्ट कंट्रोल एक्सेप्ट. सो यहाँ पे देखो हम लोग लेंगे परचेस @18%. ओके सो 18% जब डाल रहे हैं तो हम लोग को 18% से कितना टैक्स लगा, दैट वी हैव टू मेंशन. 9% टोटल है 1620. सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने परचेस कितना, ये जो 1620 किसके ऊपर लगा, 5000 एंड 4000 के ऊपर. सो यहाँ पे 18% का टोटल परचेस है 9000 का. अगर मैं 12% का परचेस, सो यहाँ पे देखो 12% का कितना है, 1000. सो ये 1000 के ऊपर आपका 6 है. सो यहाँ पे देखो ये परचेस 18% से टैक्सेबल वैल्यू 9000 है और 1000. सो यहाँ पे 9000 डाल दिया, यहाँ पे मेंशन किया मैंने 1000. सो वी हैव एंटर द परचेस वैल्यू एंड परचेस 12%. फिर यहाँ पे हम लोग का परचेस के ऊपर है तो इनपुट CGST आ जाएगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया. इनपुट SGST कैलकुलेट हो गया. ओके अगर रिलेटेड रिपोर्ट्स देखते हैं, टैक्स एनालिसिस का रिपोर्ट देखता हूँ मैं, डिटेल्स में जाना अल्टाफाई करता हूँ. तो यहाँ पे देखो 9000 के ऊपर CST कितना है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स 9%, और यहाँ पे 1000 के ऊपर 6%. तो 810 और 60 रुपया यानी टोटल
870 और 870 रुपीज़ आ गया। सो यहाँ पे उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, इसको एंटर, और यहाँ पे आपको न्यू रेफरेंस बिल नंबर देके उसको एक्सेप्ट करना। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, ओनली वी पास द परचेस एंट्री। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, इंटरस्टेट सेल्स, मैंने क्या किया, इंटरस्टेट सेल्स। सो जो कौन था, जोशी इलेक्ट्रिकल, उनको क्या किया मैंने, इंटरस्टेट सेल्स का इनवॉइस मिल गया। यहाँ पे जब इनवॉइस मिल रहा था एक्चुअली, सो यहाँ पे देखो 18% ऑन सीलिंग फैन है और इसका एलईडी पे 12%। सो 2500 के ऊपर 18% है और 5000 के ऊपर 5% है। ओके, लेकिन ये टोटल आईजीएसटी में कितना, आईजीएसटी में जाना, बिकॉज इट इज अ इंटरस्टेट सेल, जोशी इलेक्ट्रिकल इज फ्रॉम द गुजरात। ओके, गुजरात। सो उससे मुझे, मैंने जो सोल्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड डीलर ऑफ अर्चना एंटरप्राइजेस गुजरात, तो हम लोगों ने गुजरात को क्या किया है, सेल किया है। सो ये अपना इनवॉइस हम लोग गुजरात को दे रहे हैं एक्चुअली। सो लेट्स से वी हैव टू पास द सेल्स का एंट्री। सो अगेन मैं क्या करता हूँ, सेल्स के लिए एफेक्ट सेल्स करता हूँ मैं, अगेन कंट्रोल एच करके ऑलरेडी है। सो मैंने किसको सेल किया, अर्चना एंटरप्राइजेस। अर्चना एंटरप्राइजेस, कंट्रोल एक्सेप्ट पर्टिकुलर्स, यहाँ पे देखो सेल्स एट द रेट 18%, सेल्स एट द रेट 12। सो सेल्स एट द रेट 18%, टोटल अमाउंट 2500, और सेल्स एट द रेट 12%, टोटल अमाउंट इज 1000, आई थिंक 500 ओनली। सो 500। अभी ये जो है इंटरस्टेट सेल है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, आउटपुट आईजीएसटी, दैट इज आईजीएसटी आ जाएगा टोटल 510 रुपीज। अगर मैं रिलेटेड रिपोर्ट देखता हूँ, टैक्स एनालिसिस देखता हूँ और इसको डिटेल्स में जाता हूँ एक्चुअली, सो 2500 के ऊपर 18% है और ये 12% है, तो ये 60% आ गया। ओके, सो इसको एस्केप देते हैं और वाउचर एंट्री को मैं क्या करता हूँ, न्यू रेफरेंस अगेंस्ट, आई विल एक्सेप्ट द वाउचर। सो दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन द वाउचर एंट्री। नाउ यहाँ पे देखो, सोल्ड गुड्स टू द कंज्यूमर लोकली फॉर कैश, कंज्यूमर टू लोकली यानी मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इंट्रास्टेट कर रहा हूँ, इंटरस्टेट नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, कंज्यूमर यानी अनरजिस्टर्ड डीलर को सेल कर रहा हूँ ऑफ 6000, 18% का 6000 की है, सेल किया। सो अगेन सेल करता हूँ मैं। सो हम लोग कैश बेसिस पे सेल कर रहे दिखा रहे। सो आई विल गो थ्रू द कैश बेसिस सेल। ओके, कैश, कंट्रोल एक्सेप्ट, क्या सेल कर रहा हूँ, 18% से सेल कर रहा हूँ, सेल्स एट द रेट 18%, टोटल अमाउंट है ओके, ठीक है, चलो, यानी किसको सेल कर रहे हैं वो भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं, मनोज जूरी। सो लेट्स से कैश बेसिस पे सेल कर रहा हूँ मैं, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, यहाँ पे देखो बायर नेम हम लोग मनोज जूरी। ओके, मेरिंग नेम न्यू पार्टी मनोज जूरी। एड्रेस क्या है उसका देखो, बंगलो नंबर 18 नियर, बंगलो नंबर 18 नियर ICICI माहिम पालघर। ओके, सो ही इज फ्रॉम द महाराष्ट्र, गुजरात। ओके, सो यहाँ पे महाराष्ट्र, और ही इज अनरजिस्टर्ड डीलर, अनरजिस्टर्ड यानी कंज्यूमर ही है। सो अनरजिस्टर्ड डीलर डालो या कंज्यूमर, सेम ही इफेक्ट देगा। कंज्यूमर, प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही है। प्लेस ऑफ सप्लाई इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम लोग लोकली सेल कर रहे दिखा रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाएंगे महाराष्ट्र, तब जाके इट विल बी कंसिडर एज अ 6000 CGST और SGST। सो यहाँ पे देखो आउटपुट CGST है, तो CGST एंटर, और यहाँ पे SGST 540। सो यहाँ पे 540 7080 एक्सेप्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो हम लोग कभी क्या करना है, GSTR-B। GSTR-B is a monthly return to be filed under GST in which every taxable person must summarize the detailed outward and inward supplies. It is simplified return to declare summary GST liability for a tax period. क्या है? It is simply the GST liability I have to pay for the tax period. यानी ये GSTR-3B क्या करता है? 3 यानी क्या होता है? GSTR-1 होने के बाद 2 में डिस्क्रिपेंसी सॉल्व होने के बाद डायरेक्ट GSTR-3 रिपोर्ट जनरेट होता है जो मुझे कितना टैक्स लायबिलिटी पे करना है वो दिखाता है। सो लेट्स गो फॉर द GSTR-3B।
सो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाते हैं, जीएसटी 3B में जाता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। ओके, सो जीएसटी F12 कॉन्फ़िगर सेट टैक्स टाइप्स इन अ सेपरेट कॉलम टू S। ओके, सो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर करता हूँ मैं और शो सेपरेट टैक्स इन अ सेपरेट कॉलम्स। और रिपोर्ट कैसा दिखना हम लोग को, एस कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो टोटल आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, टैक्सेबल अमाउंट 510, इंटीग्रेटेड टैक्स 510, सेंट्रल टैक्स 540, स्टेट टैक्स 540, टैक्सेबल अमाउंट टोटल हो गया। ओके, टोटल टैक्स अमाउंट आ गया। देन यहाँ पे 510 और यहाँ पे 870 1740। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या आ गया, आउटवर्ड सप्लाई है दैट इज 510 540 दैट इज IGST, CGST, SGST जो हम लोगों ने सेल किया था। ये 510 कहाँ पे सेल किया था हम लोगों ने, ये जो गुजरात में था जोशी, ये लोकल सेल किया हम लोगों ने कैश बेसिस पे। टोटल अमाउंट आ गया 1590। हम लोगों ने परचेस किया था, यहाँ पे देखो ऑफ द सप्लाईज 510। सो यहाँ पे देखो इनपुट CGST, इनपुट SGST एलिजिबल फॉर टैक्सेशन। सो यहाँ पे 870 और टोटल टैक्स अमाउंट हो गया 1740। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे, सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच। सो ये आपको पूरा 3B रिपोर्ट दिखेगा, हाउ मच टैक्स आई वांट टू पे एंड हाउ मच द टैक्सेबल अमाउंट इज देयर। थैंक यू वेरी मच।